afternoon, everyone. We are doing current affairs, and today we are beginning with science and technology. We are not doing general science, we will be doing science and technology. If you have not revised your general science, no issues. Just follow the science and technology current affairs. These are important. If you feel like you want to revise general science, it's okay. If you don't want to revise general science, it's okay. If you are a commerce student and you are afraid of science, no issues, because science and technology is not totally related to science. Okay, it is related to the present developments which you will understand from your day-to-day life. These are what type of technology you are using. For example, you all must be aware about the vaccines. To understand about the vaccines, you do not need to have the idea of general science. आपको पता होना चाहिए vaccines है. These are to prevent some type of disease. इस type की technology हमें चाहिए. जैसे there is some new technology, let us say in the field of missiles development. You will know something about that. You do not need to become the missile man of India. For that we had Dr. APJ Abdul Kalam. आपको बस पता होना चाहिए this missile is for what. इससे ज्यादा डिटेल में नहीं. आपको ये भी नहीं पूछेंगे कि अच्छा अगर ये मिसाइल यहाँ से हमने छोड़ी है, इसकी इतनी वेलोसिटी से निकली, इतनी देर एक्सीलरेट किया, तो कहाँ पे जाके पड़ेगी. बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बिकम द इंजीनियर्स ऑफ और फिजिसिस्ट. ठीक है. जनरल साइंस बेसिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट है. बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बड़े सिंपल क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, आप जीपीएस टेक्नोलॉजीज कहाँ यूज कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है. जीपीएस के बारे में सबने सुना है. कहाँ यूज कर सकते हैं जीपीएस? सर ट्रांसपोर्टेशन में, मोबाइल्स में, सब जगह. अगर कहीं से मिल जाता तो देखते हैं. हो मिल गया, क्वेश्चन मिल गया. अभी क्वेश्चन पूछते हैं. अच्छा, आइंस्टाइन का नाम सुना है? हाँ, किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला? सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. न्यूज में थे साइंस आइंस्टाइन कुछ साल पहले, तो हमेशा ही रहते हैं. बस यही क्वेश्चन आया था, आपको इतना पता होना चाहिए. सबको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था, E इक्वल टू mc स्क्वायर के लिए मिला था उनको नोबेल प्राइज. ठीक है, तो बस हाँ, क्वेश्चन गलत हो गया. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. आप वो बच्चा हमसे पता नहीं आइंस्टाइन मतलब पूछ लेंगे. इतना पता होता तो आप साइंटिस्ट ना बन रहे होते. यूपीएससी वालों को पता है इतने ब्रिलियंट एस्पिरेंट नहीं आ रहे हमारे पास. आपको पता है यूपीएससी के लिए जीनियस नहीं बनना है. आपको पता है? आपको क्यों? जीनियस क्या करते हैं जो जीनियस होते हैं? सर पता नहीं, हम तो नहीं तो ऐसे अंडरस्टैंड करो. जीनियस अगर आप लोग एग्जीक्यूट करवाओगे जीनियस से, तो फिर डेवलप कौन करेगा? अरे साइंटिस्ट होते हैं यार जीनियस, जो कुछ नया ढूंढ रहे हैं. हमें चाहिए एवरेज पीपल हु आर सोशल. ठीक है, वी नीड सोशल पीपल. है ना. अगर आप सोशल नहीं होगे. चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो यूपीएससी का पास्ट ईयर क्वेश्चन है 2018 का. When the alarm of your smartphone rings in the morning,
यूपीएससी क्वेश्चन है और आराम से कहानी सुनाई हुई है. When the alarm of your smartphone, ठीक है, rings in the morning, you wake up and tap it to stop. The alarm which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day's weather and also indicates the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from your refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and places an order for the supply of fresh grocery items. When you step out of your house and lock the door, all the lights, fans, and geysers and AC machines gets switched off automatically. On your way to office, your car warns you about a traffic congestion ahead and suggests an alternative route. If you are late for meeting, it sends a message to your office accordingly. In the context of emerging communication technology, which one of the following term best applies to the given scenario? Okay. Options are border gateway protocol. Second is internet protocol. Third is internet of things. Fourth is virtual private network. So IoT. इंटरनेट थिंग इंटरनेट. इसमें कौन सा साइंटिफिक बैकग्राउंड चाहिए, इसमें कौन सी जनरल साइंस की नॉलेज चाहिए हमें? ठीक है, हम इसीलिए आपको बता रहे हैं जो लोग साइंस से डरते हैं ना कि हमसे तो साइंस तो नहीं हो पाएगा, उनके लिए हम ये बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. ठीक है, वेरी गुड. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज जीपीएस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड? यूपीएससी में जीपीएस का क्वेश्चन पूछ ले, बताओ. मजाक नहीं कर रहा, आपको लगा जीपीएस का ऐसे थोड़ी पूछेंगे. यूपीएससी 2018 प्रीलिम्स क्वेश्चन है ये. ठीक है, प्रीलिम्स क्वेश्चन है. 2018 कट ऑफ कितनी गई थी? 98 मार्क्स. हो, इसका मतलब बहुत इजी पेपर आया होगा, है ना? हो, और ये इंटरनेट थिंग्स वाला भी क्वेश्चन उसी में था. हो, जीपीएस वाला भी क्वेश्चन उसी में. इतने मुश्किल क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं हम? वेरी गुड क्वेश्चन. अभी हमने पढ़ा नहीं है साइंस टेक. अब बताइए क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड? जीपीएस के बारे में जानते हैं? व्हाट्सएप से उनके फोन से चुपके से करी होगी ना लाइव लोकेशन सेंड अपने फोन पे कभी ना कभी, तो है ना, है ना? है ना? तो जीपीएस तो समझ गया क्या होता है. वेरी गुड. कहाँ यूज होता है? ऑप्शन 1 मोबाइल फोन ऑपरेशंस, मोबाइल फोन ऑपरेशंस. दूसरा बैंकिंग ऑपरेशन. तीसरा कंट्रोलिंग ऑफ पावर ग्रिड्स. ऑप्शन ए इज वन ओनली, यानी कि ओनली मोबाइल ऑपरेशंस. ऑप्शन बी इज बैंकिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पावर ग्रिड्स ओनली. ऑप्शन सी इज मोबाइल फोन एंड कंट्रोलिंग पावर ओनली. ऑप्शन डी इज ऑल. So वो थर्ड वाला ऑप्शन क्या था? कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स. बताइए. 1 and 2 ओनली बेटा, ऑप्शन ही नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो? 1 and 2 तो ऑप्शन ही नहीं है. 1 और 2 तो ऑप्शन. ए सर ऑल थ्री वर्किंग, ऑल थ्री. अरे रुको, आपको क्वेश्चन सेंड कर देते हैं. सर पावर ग्रिड के लिए थोड़ी ना, मतलब पावर ग्रिड के लिए क्या यूज करेंगे जीपीएस का? तो रुक तो जाओ, एक मिनट तो. कंट्रोल, आंसर भी है इसमें. 1 and 2 ऑप्शन ही नहीं है ना. पावर ग्रिड के बिना ऑप्शन ही नहीं, क्यों इतनी लोड ले रहे हो? क्वेश्चन देख के ही नहीं घबराना होता है, आप ऑप्शन देख के घबरा जाते हो. ऑप्शन तक पहुंचते ही नहीं. अब बताओ, अब इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए. So बैंकिंग में कैसे? बैंकिंग में, अच्छा बेटा मान लो कैश खत्म हो गया, ठीक है, अब क्या करोगे? नई जगह पर हो, क्या करोगे? फोन निकाल के सबसे पहले क्या करोगे? हाँ बताओ, जल्दी बताओ, बताओ, सबको बताना क्या करेंगे. एटीएम नियर मी, है ना? ओहो, हुआ ना बैंकिंग ऑपरेशन में यूज. बैंक नियर मी हुआ ना बैंकिंग ऑपरेशन में यूज, है ना? वेरी गुड.
इसमें कितनी साइंस लगाने की जरूरत है ना? यूपीएससी के लिए सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पेपर का नाम है बेटा जनरल स्टडीज। सर यहाँ तो इजीली दे देते सर, वहां पे तो सिचुएशन डिफरेंट रहता तो सर पैनिक हो जाता है इंसान, नहीं देने, इसी का डाउट तो हो खेल जाता है, सर क्वेश्चन। इसी का तो खेल है, और क्या है, प्रेशर का ही तो खेल है। सर पैनिक की वजह से ज्यादा चीजें बिगड़ती हैं सर, ये तो मैंने पैनिक, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर हम लिया। लोग पैनिक इसलिए करते हैं जब हमें अंदर से लगता है वी आर अंडर प्रिपेयर्ड। हम सिर्फ पैनिक तब करते हैं जब हमें लगता है अंडर प्रिपेयर्ड। ठीक है, डर आपको हमेशा लगता है। अभी अगर आपसे ना 1000 लोगों के सामने कोई एबीसीडी बोलने को बोलते तो भी ये लगेगा कैसे बोलेंगे। ठीक है, पैर कांपेंगे वहां पर भी। ठीक है, तो रहता है एक्सपीरियंस। हम ये नहीं बोले एक्सपीरियंस है कि 6 बार पेपर दे लो, मतलब एक्सपीरियंस मॉक टेस्ट देने से एक्सपीरियंस आता है थोड़ा सा। इसलिए तो हम बोल रहे हैं 2 आवर्स पूरा टाइम दीजिए, वो जो पूरा टाइम पेपर देने में है उसके बाद चेक करिए। खुद मत करिए, किसी को घर में किसी छोटे भाई बहन हो या पेरेंट्स को बोलिए कि चेक कर लीजिए, या कोई फेलो एस्पिरेंट साथ में रह रहे हैं उनसे बोलिए चेक कर लीजिए। ठीक है, तो जनरल साइंस के क्वेश्चन समझ गए कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि इसका काम क्या है, बस कैसे 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 होता है ये नहीं समझना, ओवरऑल इसका काम क्या है। जैसे वैक्सीन बनानी नहीं है आपको, बस वैक्सीन का काम क्या है, तभी तो आप प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन करवा पाएंगे। आपसे, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अगर जो पब्लिक हॉस्पिटल के वहां पे जो सीएमओ है वो आपसे बोलेंगे प्रोक्योर नहीं हो रही है वैक्सीन, तो आपको पता तो वैक्सीन क्या है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मांग रहे हैं वो पता हो होता क्या है, ना आपको खुद बनानी है ना खुद लानी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आपको बताया जा रहा है अजी कोविड वेरिएंट इज म्यूटेटिंग इटसेल्फ, कोविड इज म्यूटेटिंग, वायरस इज म्यूटेटिंग। आपको पास पता होना चाहिए म्यूटेटिंग क्या होता है। अब कैसे हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है ना, ना आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। अंडरस्टूड? दिस इज द टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी नीड। साइंस टेक में भी, इकोनॉमिक्स में भी, दिस इज द टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी नीड। फॉर एग्जाम्पल समवन इज सेइंग कि वी नीड सर्टेन ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू इंक्रीज लिक्विडिटी। वहां पे सब बैठ के अगर आपको बैंकिंग सेक्टर वाले मीटिंग चल रही है, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी, पता तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बस करना तो आपको थोड़ी, वो तो आरबीआई करेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस। और आप तो बहुत लोग पढ़े लिखे, सोचिए द पर्सन हु इज इलिटरेट एंड इज अ मिनिस्टर, वो कितने आराम से मैनेज करते होंगे, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा, है ना। फिर भी मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उन्हें किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से ज्यादा नॉलेज होती है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। आपको भी इतनी है, तो सोचिए साइंस बैकग्राउंड नहीं हम कैसे करेंगे साइंस, है ना। ऐसे तो आपको पॉलिटी का भी बैकग्राउंड थोड़ी था, कर लिया ना। हिस्ट्री का भी बैकग्राउंड थोड़ी था, कर ली ना। ज्योग्राफी का भी था, कर लिया ना। ऐसे साइंस कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? वो पीयर प्रेशर बचपन वाला हटा दीजिए, जो होशियार बच्चे होते हैं वही साइंस समझ पाएंगे। साइंस से क्वेश्चन हम करेंगे, नंबर खींचेंगे, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर वेरी वेरी सिंपल। एक और एक ऑप्शन, अच्छा फिट वो डिवाइस है स्मार्ट वॉच, देखिए देखिए पहनी है कभी? हाँ, वेरी गुड। अब उसमें क्या क्या मेजर हो सकता है? क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में? तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। 2019 का क्वेश्चन है, कट ऑफ कितनी गई थी? 98। बहुत मुश्किल पेपर होगा फिर तो, है ना। सरकास्टिक नहीं, सच में 98 कट ऑफ मतलब मुश्किल पेपर होगा, है ना, है ना, है ना। वेरी गुड। चलो, अच्छा मोबाइल सब लोग यूज करते हैं, मोबाइल फोन।
है ना? सच बताओ, सच यूज करते हो? With reference to the communication technology, what is or are the difference or differences between long-term evolution LTE and VoLTE? LTE and VoLTE, voice over long term evolution. ठीक है, मोबाइल में आता है ना LTE और VoLTE, सब कोई ऐसा तो नहीं नई चीज है किसी के लिए भी? क्वेश्चन देखना, LTE is commonly used as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G. LTE is 3G, VoLTE is advanced 3G. बताओ। सर ट्रू और फॉल्स बताना है। हाँ बताओ। सर ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। बेटा अगर आज 4G इंटरनेट बंद हो जाए तो इंटरनेट पे क्या वोल्टी लिखा आएगा? इंटरनेट तो 4G चल रहा है ना आजकल, आजकल तो 4G चल रहा है। अभी आप कश्मीर में नहीं रहते ना, कश्मीर वाले बता देते आंसर फटाक से। खैर 3G 2G, हम तो 2G भी लाइव जी के आए कुछ दिन। 4G आता है ना फोन में तो अभी तो 5G की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो 4G चल रहा है ना। LTE इज 3G, VoLTE इज 4G। एडवांस 3G क्या होता है? कुछ नहीं होता है, अगर कुछ होता होता तो क्वेश्चन डेटा कनेक्शन के लिए होता है वोल्टी, मतलब 4G में होता है ना, बिना 4G के नहीं काम करेगा वोल्टी, बिना 4G के वोल्टी काम नहीं करेगा। सर जो जीपीएस होता है जिसे वो जनरल जीपीएस फोन मत में डाइवर्ट, जीपीएस मत डाइवर्ट हो। फोन में आपके अगर आपका 4G एनेबल्ड फोन नहीं होगा तो जियो का सिम काम नहीं करता ठीक से, है ना। ये तो सच है, ये ऐसी समझो ठीक है। उनकी आवाज ठीक से नहीं आती है, उनकी आवाज आपको अगर HD में सुननी है तो 4G वाला फोन चाहिए, है ना। तभी वो कहते हैं अरे सिम 1 में लगाओ, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, 4G वाला सिम 1 है। एक्सपीरियंस किया ये तो? ठीक है, नहीं किया? अच्छा, क्यों नहीं किया? कि सामने से कोई बोलने वाला नहीं था या 4G फोन नहीं था? कि बताओ। 4G फोन था मेरे पास। वेरी गुड। अच्छा, दर्द ज्यादा है। 4G समझ गए, इसमें कोई साइंस नहीं है। अगर फोन यूज किया 4G का दर्द महसूस किया है, समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट, LTE is data only and VoLTE is voice only technology. LTE is data only, VoLTE is voice only. गलत है? इंटरनेट भी तो चलता है वोल्टी से, 4G इंटरनेट चलता तो है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये क्वेश्चन आया 2019 में, 98 कट ऑफ गई थी। सिर्फ हमें साइंस का कुछ नहीं पता, हमें अपने फोन में बताया है जब 4G सिम चलता है तो वोल्टी लिखा आता है ना। सर ये तो जैसे रोहित ने कहा अभी की क्लास में कर ले रहे हैं, वो एग्जाम हॉल में नहीं कर पाते इसको। यही तभी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। याद है आपको हमने बोला था कि पहली रीडिंग में क्वेश्चन कर डालिए, उस दिन समझाया था, पहली रीडिंग में करिए, सेकंड रीडिंग में दिमाग लगाना है। क्योंकि ये क्वेश्चन करने ना करने तभी होगा जब आपका दिमाग चल रहा है, हम क्लैरिटी आ गई कि हाँ ये हमने कैच पकड़ लिया। ये कैच था इसमें कि अरे 4G में आता है ना वोल्टी, बस ये कैच है, क्वेश्चन हो गया। और 4G है तो 4G वॉइस ओनली थोड़ी होता है, 4G तो डेटा के लिए भी होता है। 4G और 3G में डिफरेंस सिर्फ वॉइस क्लैरिटी का नहीं है, डेटा पैकेट्स का भी तो डिफरेंट है। ओके सर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी एक बार बता दीजिएगा कैसे क्या? यही मैं शायद स्ट्रेटेजी है। था नहीं। पहली बार में जितना आता है श्योर है वो कर दीजिए फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में दिमाग चलाइए, क्वेश्चन बार बार पढ़िए। सबसे बढ़िया तरीका है बार बार क्वेश्चन पढ़िए कि LTE 3G वोल्टी एडवांस 3G। एडवांस 3G तो हमने सुना ही नहीं ना, एडवांस 3G हमने सुना नहीं है, मतलब कुछ कैच है इसमें। अब एडवांस 3G एडवांस 3G एडवांस 3G कह नहीं, 3G के बाद तो 4G आया है, 3.5G भी आया है, उसको तो एडवांस 3G नहीं बोल रहे।
बल्कि वो 3.5 नहीं 2.5G आया था, है ना? तो वोल्टी शायद से एडवांस्ड 4G है। मतलब 3G नहीं है वो। हाँ वो 3G नहीं है। इतना पता है कि आपके फोन में या तो वोल्टी चलेगा, वो 4G फोन के साथ ही चलता है ना? ठीक है, इसमें 3G लिखा है वो गलत है। मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वालों को और ज्यादा बेटर पता हो, मतलब हमें इतना पता है 3G में वोल्टी नहीं चलता। ठीक है, वेरी गुड, क्वेश्चन हो गया, सिंपल है। अच्छा, वीडियो गेम खेले होंगे। अब हम पास्ट ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं आज साथ साथ, जिससे आप लोग डरो ना। वीडियो गेम खेले हैं ना? पक्का खेले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, सबने खेले हैं। In the context of digital technologies for entertainment, consider the following statements. First, the augmented reality, or sorry, in augmented reality, a simulated environment is created and the physical world is completely shut out. In augmented reality, a stimulated environment is created and physical world is completely shut out. Second statement, in virtual reality, images generated from the computer are projected onto real life objects or surroundings. Third, augmented reality allows individual to be present in the world and improves the experience using the camera of smartphone or PC. Fourth, virtual reality closes the world and transposes an individual, providing complete immersion experience. Which of the following are correct? दोबारा रिपीट करें, रुको चारों स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, सर 2020 है ना? 19 बेटा, 19 है ईयर, ये 2021 है। नहीं सर, क्वेश्चन ही पूछा था। अच्छा, ऐसे तुमसे तुमसे तो ऐसी मजाक करते रहता है। हाँ जी, देखिए So 3 and 4 are correct. 3 and 4 are correct. वेरी गुड। इसके लिए बस आपको एक सिंपल सी चीज जाननी है, बेसिक जानना है, साइंस नहीं जाननी, बिल्कुल भी साइंस नहीं जाननी, बस बेसिक चीज जाननी है। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है? गूगल के कैसे आते हैं वीआर गॉगल्स, देखें कभी, है ना? क्या करते हैं, रियल लाइफ तो वो से शट आउट रियलिटी टाइप, हाँ सर वो हटा कुछ देते ऐसा, जैसे है नहीं ना? सर, वो क्रिएट कर देते हैं ना, मतलब दूसरी लाइफ क्रिएट करते हैं ना। आप मान लीजिए क्लासरूम में बैठे हैं, आपने वाले गॉगल्स लगा दिए, ठीक है, तो आप एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाएंगे, है ना? दूसरे वर्ल्ड में चले जाएंगे, और ईयरफोन्स लगा ली तो आवाज भी नहीं आएगी। पता लगा दूसरे वर्ल्ड में वहां बीच पे चल रहे हैं और पीछे से आवाज आ रही है आलू ले लो, है ना? तो वो तो फिजिकल वर्ल्ड से शट आउट के लिए नहीं होगा, ईयरफोन्स तो चाहिए, है ना? वेरी गुड। ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, पोकेमॉन गो एक गेम आता था, ठीक है, तो अगर वो फिजिकल वर्ल्ड से आप कट आउट हो जाएंगे तो कैसे आप उस गेम को खेल पाएंगे? अगर फिजिकल वर्ल्ड से कट आउट होगा तो गेम कैसे खेलोगे, है ना? डिफरेंस समझ गए? क्वेश्चंस करके, कब क्वेश्चन करके देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए, अब पढ़िए स्टेटमेंट, ग्रुप पे शेयर किया हमने।
हाँ जी, अब ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, वो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही साइंस टेक पढ़ना है, सिर्फ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 2019 का, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, है ना, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जानते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जानते हैं। ये सब ऐसी चीजें जो आप यूज करते हैं, है ना, ये सब ऐसी चीजें जो आप लोग यूज करते हैं। ग्रुप पे शेयर किया क्वेश्चन, देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिजिटल सिग्नेचर। An electronic record that identifies the certifying authority issuing it. Electronic record है that identifies the certifying authority issuing it. सही है, करेक्ट है, सही है, इसमें कोई गलत है, सही है, वेरी गुड। सेकंड, used to serve as a proof of identity of an individual to access information on server on internet. Digital signature is used to serve as a proof of identity of an individual to access information of server on internet. ठीक है, तो हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो, 100% सही भी नहीं, 100% गलत भी नहीं, अभी तो हमें कंफ्यूज है। तीसरे पे चलते हैं। An electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged. ये सही है, इसमें तो कोई गलत नहीं है ना। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है ना, फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, वेरी गुड। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, वन ओनली, वन एंड, टू एंड थ्री ओनली, थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री, वन ओनली, टू एंड थ्री। सर 3 ओनली। बेटा वन तो करेक्ट है ना, तो फिर तो ऑल ही होगा। ऑप्शन है क्या सर? हाँ, इसीलिए हमने सेकंड को जज पे नहीं किया ना, सेकंड क्वेश्चन पर हमने जज ही नहीं किया, ठीक है। वन में क्या गलत, अगर आप रिकॉर्ड दे रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर है कि हमारा है, इशूइंग अथॉरिटी बता रही है, नहीं सर, 1 में तो डाउट नहीं था, सेकंड में था, मतलब। तो वन, या तो वन ओनली है ऑप्शन में, या फिर वन टू एंड थ्री है, बाकी वन के बिना नहीं है कोई भी, ठीक है। अरे टफ क्वेश्चन में आता है ये, दिस इज अ टफ क्वेश्चन। बस हमें क्या पता होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ओके, वेरी गुड। अब आगे वाला क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरेबल टेक्नोलॉजी। ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोग टाइम वेस्ट हो रहा है करंट करने, हमको लिस्ट बनानी है क्या क्या नया करंट में आया साइंस टेक्नोलॉजी में, ऐसा तो नहीं होता ना। काफी स्टूडेंट क्या होते हैं वो यहाँ क्लास में, उनकी अगली क्लास होती है, खुद करंट अफेयर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो कहते हैं यार तो कोई पढ़ा है नहीं, अब दूसरी क्लास में पढ़ाना था, ठीक है। ऑनलाइन में ऐसा बहुत हो गया ना, यूपीएससी में टीचर, सबको लगता है यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं हम यूपीएससी हम पढ़ा लेंगे, ठीक है, वो कहीं जगह पढ़ा लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, तो किसी को उन्होंने हायर कर लिया, वो कहते हैं यार तुम, हम तो तुम्हारे भरोसे या क्लास कर रहे हैं कि शाम की क्लास में उसे पढ़ाएंगे, तुमने कुछ नहीं पढ़ाया, तो ऐसा तो नहीं है ना किसी को। अब एक है जयपुर में एक दो ने सेंटर खोला है, ठीक है, और फिर कहते हैं सर अपने नोट्स भेजो, एक तो ऐसा पढ़ाना है क्लास में, मैंने कहा ले लो भाई, मैंने कहा काम करो, आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो है नहीं, फोटोकॉपी करा लो, पढ़ा सको तो। फिर कहते नहीं कुछ नहीं, हम आपकी वीडियोस देख लेंगे, उसी से कॉपी करके नोट्स बना लेंगे, फिर पढ़ा देंगे, ठीक है। सर ये 18 बैच के? हाँ 18 बैच के, एक अकेडमी चल रही है जयपुर में, ठीक है, चल रही है, चला रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, दिक्कत ये नहीं है, हमें भी तो, हमने भी तो कभी, हमारे टीचर्स भी हम ही सोचते होंगे ये भी पढ़ा रहे हैं, कौन कोई पढ़ा लेता है, ठीक है। तो in the context of हाँ क्वेश्चन देखिए, in the context of wearable technology, which of the following tasks is or are accomplished by wearable devices?
बस आपको ये पता होना चाहिए वेरिएबल डिवाइसेस क्या होते हैं। क्वेश्चन हो गया। कोई ऐसी डिवाइस जिसको आप पहन सकते हो, ठीक है। डिवाइस कोई भी डिवाइस हो सकती है, स्मार्ट वॉच हो सकती है, फिटबिट हो सकता है, स्मार्ट लॉकेट भी हो सकता है, स्मार्ट गूगल ग्लासेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल डिवाइस। वेरी गुड। लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनको पहनने के बाद। यस सर। वेरी गुड। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन हो सकता है क्या इनको पहनने के बाद? वेरी गुड। असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हो सकता है इनको पहनने से। बस क्वेश्चन है यूपीएससी का। सर फर्स्ट वाला क्या था? लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, मतलब जीपीएस से लोकेशन ट्रैक कर सकते हो जिसने पहनी हुई है ना। ये यूपीएससी क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे इतना मुश्किल क्वेश्चन? समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या हम मैनेज कर लेंगे? क्या हम मैनेज कर लेंगे, है ना? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? शुरू करें अब। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंटिन्यू करेंगे, बीच में नहीं छोड़ के जाएंगे, है ना? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट डिफिकल्ट। हथियार नहीं डालेंगे बीच में, ठीक है। हमें टॉपिक आपको पूरा कवर करना होता है, आपको पूरा रटना नहीं होता है। It is our responsibility to tell you each and every word, but you have to only have a broad understanding. ठीक है? Okay? Very good. सर वो इकोनॉमिक्स में जैसे जो नोट्स हैं उसमें डिटेल्स मतलब दिए हुए हैं काफी, तो मतलब टेंडेंसी यही है कि Broad डिटेल्स को आपको याद broad करना। understanding. डिटेल्स नहीं याद करो बहुत ज्यादा, क्योंकि नहीं याद रहेंगी। ठीक है, नहीं याद रहेंगी। जो चीज देखिए, डिटेल्स तब याद रखिए जब आप उसको रिटेन कर पाए। अगर आप नहीं रिटेन कर पा रहे तो उस डिटेल को याद करने क्या फायदा है? ओनली आइडेंटिफाई कि ये चीज है, दिस आई विल रिवाइज अगेन एंड अगेन सो दैट आई विल रिमेंबर दैट। और आपको नहीं हो रहा है तो उससे अच्छा जो चीज आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको 50 बार और आगे रिवाइज कर लीजिए, रादर देन फोकसिंग अपॉन दोज थिंग्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू डील विद। ओके, वेरी गुड। नाउ वी आर बिगिनिंग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Now the first topic is the difference between DNA and RNA. ठीक है, DNA and RNA. Why this question can be asked? Because COVID-19 is a virus, है ना, and it is a RNA virus. COVID-19 is a RNA virus. तो इसीलिए हमें particularly RNA के बारे में ज्यादा जानना है rather than DNA. ठीक है, तो there are two types of nucleic acids. One is deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic acid, that is called as DNA, and other is ribonucleic acid, that is called as RNA. ठीक है, RNA are of three types. RNA are of three types. First is messenger RNA. RNA are of three types. ठीक है, mRNA is the type of RNA that is the messenger RNA. उसका क्या काम होता है? That it will copy your genetic code. It will copy your genetic code and it will transfer these copies to the ribosomes. Ribosomes क्या होते हैं? These are the cellular factories that will facilitate the production of protein from that code. There will be a factory that will be producing protein in your body. ठीक है, in your body. तो वो प्रोटीन आप ही की बॉडी के हिसाब से तो होना चाहिए। तो व्हाट विल दे डू? दे विल कॉपी योर जेनेटिक कोड सो दैट जेनेटिक डिफरेंसेस ना आए, जेनेटिक वेरिएशंस ना आए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? दे विल कॉपी द पोर्शन ऑफ योर जेनेटिक कोड एंड दे will send it to the ribosomes, that is the protein factory. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन एग्जैक्टली। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? व्हेन द messenger RNA mRNA copies the genetic code and transferred it to the
राइबोसोम्स, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ये 5% टोटल आरएनए का 5% ही मैसेंजर आरएनए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये कॉपी नहीं करेगा तो बाकी अंदर पता ही लगेगा हो क्या रहा है। इसीलिए मान लीजिए वैक्सीन में कहीं आरएनए लगा दिया तो आपकी इम्यूनिटी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है ना? वेरी गुड। तो इसीलिए एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन भी आ रही हैं। ओके, इसीलिए क्वेश्चन समझे क्यों आ सकता है, क्योंकि वैक्सीन आ रही है एमआरएनए बेस्ड। आरएनए है, कोविड इज आरएनए वायरस, इसीलिए कोविड आरएनए से आ सकता है। एंड एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन आर बीइंग मेड, बल्कि थर्ड फेज ट्रायल में है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम में प्रोटीन प्रोडक्शन करता है। ठीक है, पर्टिकुलरली प्रोटीन प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ये मैक्सिमम पोर्शन होता है राइबोसोम का। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन होता है राइबोसोम का, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सबसे कम कौन सा होता है। तो सबसे ज्यादा राइबोसोमल आरएनए, सेकंड आपका होता है ट्रांसफर आरएनए, और सबसे छोटा होता है आपका मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं? ये करते हैं जो अमीनो एसिड्स होती हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, वो प्रोटीन फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, जिससे प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड्स को प्रोटीन फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे? जिस बेसिस पे इंस्ट्रक्शन आप आरएनए सेंड करें कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, आरएनए ने एमआरएनए बताई हमें ये चाहिए, तो ट्रांसफर आरएनए कहेगा ये इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, वो भिजवाएंगे। ठीक है, आपको आईफोन 12 की स्क्रीन चाहिए, ठीक है, आपको आईफोन 12 की स्क्रीन चाहिए, तो ट्रांसफर आरएनए क्या बोलेगा? आईफोन 12 की स्क्रीन के लिए आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल उस पर कोई ग्लास सैफायर का ग्लास लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो सैफायर ग्लास चाहिए, क्योंकि यहाँ आईफोन की स्क्रीन चाहिए, यहाँ पर सैफायर ग्लास चाहिए, तो सैफायर ग्लास को भिजवाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे आपको ये वाला प्रोटीन बनना है, उसके लिए अमीनो एसिड्स चाहिए, लेकिन अमीनो एसिड्स इस प्रोटीन को डेवलपमेंट के जो चाहिए दैट विल बी सेंट थ्रू दी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये जो ट्रांसफर होता है अमीनो एसिड्स के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन था एमआरएनए के थ्रू, ट्रांसलेशन होता है ट्रांसफर आरएनए के थ्रू। ठीक है, ट्रांस होगा, अच्छा दोनों में ट्रांस है, लेकिन एक ट्रांसलेशन है, ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन कॉपी वाले को नहीं बोलेंगे, बस ये याद रखिएगा, वरना लगे ट्रांसलेशन इधर से उधर कॉपी कर रहे हैं, तो वो नहीं। समझ में आया यहां तक? नहीं आया कोई बात नहीं, इतनी बायोलॉजी अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, ऐसा दिखता है डीएनए। ठीक है, ऐसा दिखता है डीएनए। क्या है ये? डबल स्ट्रैंडेड है। ये ऐसे दिखता है आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है ना? वेरी गुड। डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं, आप दिखाओ लिखा होगा डिफरेंस ऐसा कहीं। हाँ देखो, ये डबल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड, इसलिए कुछ दिमाग लगाना पड़ा, देख के बता दिया तुमने, बस ये पता होना चाहिए स्ट्रैंड होते क्या है ना, है ना, है ना? वेरी गुड। राइबोसोम्स, तो सॉरी आरएनए और डीएनए, ठीक है, ये भी 4 पार्ट से बनता है। आरएनए एंड डीएनए 4 पार्ट से बनता है। ये क्या पार्ट्स हो सकते हैं? ए जी ए सी डीएनए के लिए, वो सॉरी ए जी सी टी डीएनए के लिए, ए टी होता है एडेनाइन और टी होता है थाइमाइन, जीसी होता है ग्वानिन एंड साइटोसाइन। कोई याद करने की जरूरत नहीं, हम बता रहे हैं जिससे आप ये ना बोले हमें नहीं बताया। ठीक है, डीएनए में 4 तरीके के जो है सब पार्ट्स होते हैं, ए जी ए टी। ठीक है, जीसी का एक पेयर बनता है, एटी हमेशा पेयर करता है, अलग अलग नहीं करेंगे, हमेशा जीसी का पेयर होगा और एटी का पेयर होगा। इसमें जीसी का पेयर होगा, इसमें एयू का पेयर होगा, यू इज यूरेसिल। ओके, डीएनए होता है डाइऑक्सी और ये होता है खाली राइबोस। ये होता है डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें 2 डाइऑक्सी होते हैं, इसमें एक राइबोस होता है। ठीक है, और फंक्शन देखिए, फंक्शन देखिए, डीएनए इज needed
फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है दैट इज नीडेड और दैट इज कैरिड इन द डीएनए। आरएनए इज द functional functional part of the genetic information or genetic code for the protein creation. It is needed for the protein creation. ठीक है? DNA is self replicating. DNA खुद से replicate करता है. RNA synthesized from DNA. ठीक है? RNA is synthesized from DNA. It's not self replicate. इतना अगर आपको याद रहेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। और डीएनए कहाँ मिलता है? इट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। आरएनए इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, इन द न्यूक्लियस एंड इन द राइबोसोम्स। ओके, एक बार इसको रीड करिए सो दैट यू रिमेंबर इट। डन, चले आगे। अब कोविड, कोविड के बारे में जानते हैं, है ना? कोविड के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो जानना है, कुछ पता हो तो बता दीजिए। टेस्ट होते हैं कोविड के, क्या क्या नाम है टेस्ट के? क्या नाम है टेस्ट के? RT-PCR। वेरी गुड। फुल फॉर्म क्या है? So reverse transcription। वेरी गुड। ओ माय गॉड, हाँ फिर से बोलो, अब बताओ, जल्दी बताओ। Reverse transcription polymerase chain reaction। हाँ, वेरी गुड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करना है टू आइडेंटिफाई, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे आपको पता लगेगा स्ट्रेन है कि नहीं है। समझ में आ गया? अभी ट्रांसक्रिप्शन जब समझ गए तो और समझ में आ गया आरटीपीसीआर क्या हो रहा है। वेरी गुड। दूसरा होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, इट इज टू आइडेंटिफाई द एंटीजेंस। वेरी गुड। अब कोविड जो है एक वायरस है, तो वायरस की
टेंडेंसी क्या होती है, वायरस की टेंडेंसी क्या होती है? वायरस, कैन वायरस मेक इट्स ओन फूड? नो, वायरस नीड्स अ होस्ट। अब जब वो खुद से डिपेंडेंट नहीं होता है, अगर मान लीजिए हम अपने घर में खाना बना रहे हैं तो हम खुद से मेन्यू बना सकते हैं अपना, है ना? अगर हम डिपेंड है कि हम किसी और के घर से हमें खाना मिलेगा, ठीक है, तो क्या हम मेन्यू बना सकते हैं? नहीं। आज हमारा जो डाइट है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारा डाइटरी हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। मान लीजिए हमें जो खाना मिलता है वो मिलता है हमारे घर का जो रहता है। आज अगर वहां पर कोई नॉर्थ इंडियन रह रहा है तो वी आर ईटिंग नॉर्थ इंडियन फूड, है ना? लेकिन इफ समवन फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज लिविंग इन दैट प्लेस, तो हमारी डाइटरी हैबिट्स नॉर्थ ईस्टर्न फूड के बेसिस पे हो जाएंगी। तो क्या हमारी बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे कंपेयर टू आवर डाइटरी हैबिट्स? बिल्कुल आएंगे। ऐसा ही वायरस के साथ होता है, ठीक है, ऐसा ही वायरस के साथ होता है। वेरी गुड। अब वो नॉर्थ ईस्टर्न चेंज होके फिर नॉर्थ इंडिया से आ गए कोई, और वो आ गए पंजाब साइड से, तो हमारी डाइटरी हैबिट फिर चेंज हो जाएंगी, है ना? वेरी गुड। अब वो जो आप डाइट चेंज कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा डाइट हो सकता है आप फिट हो सकते हैं, कुछ ऐसा डाइट हो सकता है जिससे आप जो है वेट गेन भी कर सकते हैं, है ना, या वेट लूज भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। डिपेंड करता है म्यूटेशन पे, है ना? अगर मान लीजिए समवन फ्रॉम पंजाब इज तो वहां पे सुबह सुबह कल्चर क्या, पराठे खाने का, है ना? और आप अभी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जब फूड ले रहे थे, हो सकता है आप जो है राइस कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा, तो आपकी एकदम डाइटरी हैबिट चेंज हो सकता है वेट गेन करें इमीडिएटली, हो सकता है बहुत लूज करें। तो वो डाइट आपके लिए हो सकता है मोर इफेक्टिव हो सकता है लेस इफेक्टिव हो, है ना? ऐसा ही वेरिएंट होता है। वेरिएंट में क्या होता है? म्यूटेशन होती है वायरस में। समझ में आया? नया जो स्ट्रेन बनता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन, उसको समझते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का वायरस डेंजरस भी हो सकता है, लेस डेंजरस भी हो सकता है, मोर डेंजरस भी हो सकता है ना? है ना? वेरी गुड। अब जो ये वेरिएंट्स होते हैं उनके नाम करे हुए हैं, दे आर गिवन सर्टेन नेम्स, ठीक है। B117 को अल्फा बोलते हैं, इट वाज आइडेंटिफाइड फ्रॉम यूके। B1351 को बीटा बोलते हैं, इट वाज आइडेंटिफाइड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। P1 is gamma, it was identified from Brazil. B16171 kappa India, B16172 delta India, ठीक है, and C37 is lambda Peru. These are the different viruses, alpha, beta, gamma, kappa, delta, lambda, ठीक है। वेरिएंट्स इसमें ये हैं, क्वेश्चन ये था, नाम है। हाँ जी, इस पे क्वेश्चन था सर अभी। CAPF में क्या क्वेश्चन था? कंट्रीज दी हुई थी और डेल्टा के लेबल्स दिए हुए थे, उसको मैच करना था। बताइए, अब तो कर देते, है ना? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और कहाँ से बनेंगे? ठीक है, और CAPF में ज्यादा टेक्निकल पेपर होता है, ठीक है। CAPF का पेपर कट के यूपीएससी की तैयारी ना करने की कोशिश करिएगा, अगर उसको एनालाइज करेंगे तो कभी जिंदगी में सिलेबस खत्म नहीं होगा, इतने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सर ये याद आ गया इसलिए बता दिया। हाँ, नहीं नहीं सही है। देखो, उसको क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करना, अब तो आराम से हो जाएगा। यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, इंडिया, पेरू। सर ब्राजील और इसमें था कंफ्यूजन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में। अच्छा, इसमें बीटा गामा वाले में, ठीक है, चलिए समझ में आ गया। यहाँ तक तो म्यूटेशन क्या होता है। अब म्यूटेशंस में ना कुछ वेरिएंट को बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट इंटरेस्ट में क्या होता है कि जेनेटिक चेंजेस which are involved to predict the transmissibility, disease severity और immune escape. वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इज डेंजरस। Variant of interest is that variant through which you can identify or predict the genetic changes that are happening, and that will tell how transmissible that variant is, how severe that variant can be, and how can the variant will escape the immunity, ठीक है। That will be variant of interest। जरूरी नहीं आप सारे variants को identify करें,
कुछ वेरिएंट को आप नहीं फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब सब बीटा वेरिएंट आ गया, अल्फा चला ही गया है, तो अल्फा पे क्यों फोकस करेंगे, ठीक है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझ गए। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब नहीं होता कि इट इज वेरी डेंजरस, वेरी ट्रांसमिसेबल, ओके। ये और क्या पता लगता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है वायरस का। जब आप किसी भी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं, दैट शोज दैट द कम्युनिटी ट्रांसमिशन हैज स्टार्टेड, ठीक है। अब आपने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में आइडेंटिफाई किया दैट ये वेरिएंट इज मोर ट्रांसमिसिबल, मोर सीरियस एंड इट इज कॉजिंग इम्यूनिटी एस्केप, ठीक है। या फिर वैक्सीन काम नहीं कर रही तो उस वेरिएंट को बोलेंगे वेरिएंट ऑफ कंसर्न। दैट वेरिएंट इज कॉल्ड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। वेरी गुड। देन देयर इज अ वेरिएंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, वेरिएंस ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस। ये क्या होता है कि इस वेरिएंट से पता लग रहा है दैट वी आर हैविंग काउंटर मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू सच अ वेरिएंट, ठीक है, सच अ वेरिएंट, ओके। यहां तक समझ में आ गया, तीनों तरीके समझ में आ गए हैं। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, एनी टाइप ऑफ बुढ़ापा पेंशन नहीं? क्यों नहीं हो? एनपीएस में जमा करेंगे, आएगी बुढ़ापा पेंशन, तो दे टेंशन ले, है ना। एनपीएस में क्वेश्चन आ चुका है, एनपीएस से भी कौन कौन जमा कर सकता है एनपीएस में? जालिम है यूपीएससी, ठीक है। एनपीएस में कौन कौन जमा कर सकता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वेरी गुड, चले आगे, चले चलिए। वैक्सीन किस लिए होती है, क्या काम होता है वैक्सीन का, कुछ पता है आपको? क्या काम होता है वैक्सीन का, किस लिए होती है बताइए? इम्यूनिटी डेवलप करना। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, वेरी गुड। और तो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर वो स्मॉल फॉर्म ऑफ वायरस डालते ताकि हम एंटीबॉडीज डेवलप हो सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि 3-4 ऑप्शन देते हैं ना यूपीएससी, तो हमें 3-4 ऑप्शंस पता होने चाहिए। अच्छा, वैक्सीन को डिजीज प्रिवेंट करने के लिए होती है, डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए होती है, बस ये बता दो। प्रिवेंशन, प्रिवेंट ट्रीटमेंट सर, ट्रीटमेंट के लिए होती है ना जिसको। वैक्सीन इज ओनली फॉर प्रिवेंशन। अब कोविड वैक्सीन, कोई बीमार को कोविड वैक्सीन नहीं लगाते, कोविड ना हो इसलिए वैक्सीन लगाते। वो तो कहते हैं अब तो कोविड हो गया, 90 दिन मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोविड वाले को तो मना करते हैं 90 डेज मजे करिए, कोई दिक्कत नहीं, बातचीत नहीं है ना। समझ में आया? बस ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये आएगा। वैक्सीन आर फॉर ट्रीटमेंट नहीं, मेडिसिन आर फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। वैक्सीन आती उसी चीज की जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। डेंगू की वैक्सीन सुनी है? डेंगू की, ठीक है, सुनी है। अफ्रीका से अगर कोई या अमेरिका से कोई ट्रैवल करने जाता है ना, डेंगू की वैक्सीन लगवा के जाता है। आप यूएस जाओगे ना, आपसे बोलेंगे बताओ कौन कौन सी वैक्सीन लगा के आए हैं, ठीक है। येलो फीवर की वैक्सीन आती है उसका, क्योंकि जिस जगह पर वहां पे तो अफ्रीका में तो जरूर लगा के भेजी होगी येलो फीवर की। अफ्रीका में भैया अलाउ नहीं करते हैं येलो फीवर। जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कोविड तो कुछ नहीं है येलो फीवर के आगे। जैसे चटमंगनी पट ब्याह होता है, ऐसी येलो फीवर कहते हैं, फट ट्रांसमिशन फट मौत, इतना डेंजरस है येलो फीवर। मतलब इतना नहीं कि इतना इमीडिएटली वो तो नहीं, लेकिन मतलब इतना डेंजरस है। तो वैक्सीन मोस्टली उस चीज के लिए होता है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन इसलिए होती है क्योंकि पोलियो को कोई ट्रीटमेंट नहीं। एक बार पोलियो किसी की बॉडी में अफेक्ट कर देता है, देन देयर इज नो गोइंग बैक, ठीक है। तो वैक्सीन आर ऑलवेज प्रिवेंटेबल ट्रीटमेंट। लेकिन रेबीज की वैक्सीन तो जैसे बाद में ही लगती है ना, जैसे वूंड के बाद में। वो रेबीज ना हो इसलिए लगती है ना, डॉग बाइट के बाद में होती है ना। डॉग बाइट के बाद में होती है, रेबीज के बाद में नहीं होती। रेबीज हो गया तो क्या है, वो तो बेचारा पानी देख के घबराएगी, कुछ नहीं कर सकते। बट सर यही तो नहीं पता ना, रेबीज तो मतलब
एकदम से भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है। हाँ, तो यही तो प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लगाते हैं कि ना हो। अब एकदम से हो रहा है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। और पेट्स को किस लिए लगाते हैं? कि पेट रेबिट ना हो। इंसान को भी नहीं, पेट को भी लगता है पेट रेबिट ना हो, वो तो ट्रांसमिट होते हैं ना, क्योंकि, है ना। तो ये चीज अब समझ में आ गया। और गुड। अब बताओ, कोई टेंशन, कोई मेंशन? वैक्सीन, अब वैक्सीन जब लगा रहे हैं तो वैक्सीन में क्या ट्रांसफर करेंगे? आप कोरो वायरस डाल देते हो या कौन सा वायरस, कैसा डालें? इनएक्टिव। जिंदा सर या? दोनों वीकन फॉर्म ऑफ डलते हैं। वायरस, हाँ जी, वीकन फॉर्म ऑफ सर वायरस। लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। वेरी गुड। तो डेड सर वायरस भी डाल कोविशील्ड सकते में हैं। हाँ, बताइए बताइए। सर सर वीकन फॉर्म ऑफ कोविशील्ड में वायरस नॉन ज्यादा है। लिविंग है कोविशील्ड में नॉन लिविंग है, और कोवैक्सीन में लिविंग है। कोवैक्सीन में लिविंग है। एक होता है इनएक्टिवेटेड वायरस, ठीक है, और एक होता है एक्सिन्यूएटेड वायरस, ठीक है। एक्सिन्यूएटेड मतलब जो है लिविंग है, और जो इनएक्टिवेटेड मतलब उसको बिल्कुल इनएक्टिव कर दिया। कभी कभी क्या होता है, उसमें से सिर्फ कुछ पार्ट निकाल लेते हैं वायरस से, कुछ स्ट्रेन्स निकालते हैं, बाकी सब डाल। तो इसी उस पे बेसिस पे अलग अलग टाइप की वैक्सीन, और कुछ नहीं, इसी बेसिस पे अलग अलग टाइप्स की वैक्सीन है, ठीक है। एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है जिसका नाम है HGO, वो HGCO19, ठीक है। mRNA बेस्ड है तो आप समझ जाएंगे किस काम आएगी, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे किस काम आएगी। तो mRNA बेस्ड वैक्सीन HGCO19। अब दो टाइप की वैक्सीन, लाइव वैक्सीन जिसमें वही जो वायरस है उसी को डाल देते हैं, ठीक है, वही जो वायरस है उसी को डाल देते हैं। उसका लेकिन एटीन्यूएटेड फॉर्म जो होता है, या फिर वीकेंड फॉर्म, ऐसा नहीं कि खतरनाक फॉर्म, बहुत वीकेंड फॉर्म होती है, वो डालते हैं। ये कहाँ किस केस में यूज होता है? मीजल्स की वैक्सीन में, रुबेला की वैक्सीन में, टीबी की वैक्सीन, रोटा वायरस, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, एंड येलो फीवर वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है? किल्ड वर्जन ऑफ जर्म यूज करते हैं, ठीक है। पोलियो की जो वैक्सीन लगती है ना, थ्रू इंजेक्शन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, उसमें डालते हैं आपका इनएक्टिवेटेड वायरस, ठीक है। सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आती है। सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट मतलब जो है कुछ पार्ट निकाल लिया या फिर किसी दूसरे पार्ट से कंबाइन करके। ये जनरली यूज होती है आपकी हेपेटाइटिस बी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी में। टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होती हैं? जो जर्म है उसका जो कुछ टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करते हैं, उस टॉक्सिन को वैक्सीन की तरह डालना, जिससे बॉडी को पता लग जाए ऐसा टॉक्सिन आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बी स्टिंग होता है, बी स्टिंग फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है, फॉर्मिक एसिड ट्रांसमिट करता है, बी स्टिंग के लिए इम्यूनिटी बन जाएगी, है ना। बॉडी में क्या होता है, बी स्टिंग होते एकदम से स्वेलिंग आ जाती है फॉर्मिक एसिड की वजह से, बिकॉज द टॉक्सिन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म। अगर बॉडी में फॉर्मिक एसिड थोड़ा सा आप डाल दो तो बॉडी अपने आप वही असर करेगी जो बी स्टिंग पे करती है। तो ऐसी टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है। आरएनए वैक्सीन होती है विच आर बेस्ड इंट्रोड्यूसिंग mRNA सीक्वेंस, वो हम बता चुके हैं, ठीक है, वो आपको बता चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? अब दो टाइप की वैक्सीन होंगी, या तो ट्रेडिशनल वैक्सीन होती हैं या जीन बेस्ड होती हैं। ट्रेडिशनल वैक्सीन वही कि इनएक्टिवेटेड वायरस या फिर एक्टिन्यूएटेड वायरस या बैक्टीरिया के लिए भी होता है। और जीन बेस्ड होती है वही mRNA की फॉर्म में, जो है mRNA tRNA, वहां पे आप जीन लेवल पे जो है डिफरेंस कर रहे हैं। वेरी गुड। एक और वैक्सीन आ रही है, कोवैक्स। इंडिया में, पूरी इंडिया ने बोला 300 मिलियन डोजेस लगेंगी। 300 मिलियन डोजेस कितनी हो गई? 300 मिलियन की हो गई 300 करोड़, 30 करोड़ वैक्सीन, ठीक है, 30 करोड़ वैक्सीन। तो ये वैक्सीन लगेंगी, ओके। क्या है, क्यों है? इसमें जो वैक्सीन में यूज होगा, इसमें स्पाइक प्रोटीन यूज होगा, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन यूज होगा, विच विल डेवलप एन
रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन वैक्सीन रहेगी। ओके, इसे प्रोटीन फॉर्म में इंजेक्ट करेंगे। वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, मिशन इंद्रधनुष के बारे में हमने पढ़ा है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसे मत बोलो, मैं तो प्राइम मिनिस्टर बोला था पहले ऐसा नहीं होता था, हम इतनी वैक्सीन लगवा डालते हैं, अब हम घर से निकाल निकाल के वैक्सीन लगाते हैं, पहले तो किसी को भी वैक्सीन नहीं लगी थी। तो आप सबको लगी कि नहीं लगी? बताओ बताओ, वैक्सीन नहीं बता रहे हैं। हाँ जी, तो एक मिशन इंद्रधनुष है, लेकिन हमारा टारगेट था कि हम इंडिया में फुल इम्यूनाइजेशन करेंगे, बिकॉज ऑफ कोविड वो इम्यूनाइजेशन हमारा बीच में स्टॉल हो गया था। तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 शुरू किया था। उसमें क्या है कि फ्रॉम February 22 and March 22 for 15 days in the pre-identified districts, the children and women, pregnant women, they will be immunized. मिशन इंद्रधनुष सबके लिए नहीं है। आप वो लोग मन में ये मत सोचा अरे हमने तो निकाला ही नहीं, घर से बाहर निकाल के वैक्सीन नहीं लगवाई, बिकॉज you are not children right now and not necessarily everyone can be pregnant at that moment, ठीक है? तो pregnant women and children के लिए, okay? This is mission इंद्रधनुष। ये उनके लिए particularly whom is their vaccines during the COVID times। जो beneficiaries हैं जो migrated areas में थे, नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए भी वैक्सीन लगेगी। अब मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा मिशन है where we are trying to have a universal immunization। We are trying to have universal immunization in which the beneficiaries are children who are partially vaccinated or unvaccinated, ठीक है? Children who are partially vaccinated or unvaccinated, pregnant women who are left uncovered due to the routine immunization program, ठीक है? इसमें डिजीज याद कर लीजिए कौन कौन से डिजीज कवर्ड है, ठीक है? डिप्थेरा बैक्टीरियल है, याद करने के लिए DPT, ठीक है? DPT, ये तो 3 है, ये कभी भी याद होगा तो ये तो रहेंगे। कैसे कौन कौन सी है? डिप्थेरा, हाँ जी, डिप्थेरा, DPT, ठीक है? इंद्रधनुष में कितने रंगों से बनता है इंद्रधनुष? हाँ, याद करने का तरीका बता रहे हैं। अब आप सोचो अच्छा कितनी वैक्सीन कैसे याद होगा? तो नंबर ऑफ वैक्सीन तो 7 रहेंगी,
इनिशियली, बाद में बढ़ गई है। ये इंद्रधनुष ज्यादा रंग वाला है, ठीक है। देयर आर मोर वैक्सीन। तो डी डिप्थेरा, पोलियो, टेटनस, 3 हो गई। अब टीबी, ठीक है, 4 हो गई। फिर क्या है, मीजल्स, 5 हो गई। फिर क्या है आपका, हेपेटाइटिस बी एंड वूफिंग कफ। ये 7 वैक्सीन है इसके अंदर, ओके। 7 वैक्सीन है। यूपीएससी क्वेश्चन आया था कि इंडिया में हेपेटाइटिस बी है कि खत्म हो गया है, बताओ। सर है अभी भी। है ना, कैसे पता? सर वैक्सीन लगवा रहे हैं उसकी तो। हाँ लेकिन बेटा वैक्सीन तो पोलियो की भी लगवा रहे हैं, है ना, वैक्सीन तो पोलियो की भी लगा रहे हैं। लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं, बताओ। लेकिन पोलियो तो है नहीं इंडिया में वैक्सीन, लेकिन पोलियो को इसलिए लगवा रहे हैं जिससे दोबारा ना आए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इंडिया में अभी भी है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स है इंडिया में कि नहीं है? स्मॉल पॉक्स है कि नहीं है इंडिया में, बताओ। है, अच्छा जी, गूगल है सबके पास? इंडिया में बेचारों ने इतनी मेहनत करके स्मॉल पॉक्स खत्म किया, आप जो कह रहे हो है। चिकन पॉक्स है बेटा वो, स्मॉल पॉक्स नहीं है। इंडिया इज स्मॉल पॉक्स फ्री कहते, लेकिन छोटी माता तो आती है ना, माता बोलते हैं ना इंडिया में उसको, बेटा वो छोटी माता कुछ अलग होता है, चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स अलग होता है। मतलब चिकन पॉक्स होता है बेसिकली, वो जस्ट विद द साइज ऑफ द पॉक्स, उसको हम छोटा और बड़ा बोल देते हैं। स्मॉल पॉक्स इंडिया में अब एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। along with this 4 more vaccines are being provided, ठीक है। ये तो 7 तो है ही, these 7 are there, 4 more are there। पहली रुबेला, ठीक है, रुबेला की वैक्सीन। दूसरी जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन, ठीक है, रुबेला जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन। इंजेक्टेबल पोलियो बाइवेलेंट वैक्सीन, लेकिन हम पोलियो में इसको कवर कर दिया है इसलिए हम उसको आपको 4 अलग बोल रहे हैं, एक रोटावायरस और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा बी की वैक्सीन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रुबेला और रोटा वायरस, ये सारी डिजीज कवर हो रही है। पोलियो तो 2 बार कवर हो रही है, एक उसमें ओरल और एक इंजेक्टेबल, ठीक है, फॉर सेफ गार्डिंग, कि भाई अगर कुछ एरिया है जैसे मान लीजिए तेलंगाना में कुछ साल पहले शक था कि वहां पर पोलियो का वायरस हो सकता है, तो वहां पर इंजेक्टेबल लगाएं जिससे कि उसको ज्यादा काम, क्योंकि ओरल से ज्यादा इंजेक्टेबल काम करता है, ओके। सर एक दो चीज पूछ सकता हूँ उससे? बताओ, सर इसमें आराम ऐसा आ से। सकता है कि टेटनस का जो वो है इंजेक्शन या वैक्सीन, वो मतलब टेटनस के लिए किस किस चीज के लिए यूज होता है? इतना आ जाएगा तो बेटा फिर वो गलत पेपर में बैठे, वो कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्जाम है। और सर दूसरा जो हेपेटाइटिस बी है, एक ट्यूबरकुलोसिस है, और एक, ट्यूबरक्लोसिस, हाँ। जी, और एक एचआईवी, और एक एक शायद और था। तो इस तरीके के जो ट्रांसमिशन होते हैं वो ओरल ट्रांसमिशन से कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? हाँ तो बेटा HIV ओरल से नहीं होता है, ठीक है, HIV नहीं होता, टीबी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया है। वायरल के लिए ना, वायरल के लिए कोई ना कोई डायरेक्ट ट्रांसमिशन होना चाहिए, वायरल के लिए डायरेक्ट ट्रांसमिशन होना चाहिए। टीबी होता, तीसरा कौन सा था, HIV नहीं होता ओरल से। HIV कहते थे खाने से कहाँ फैलता है ना, वेरी गुड, है ना, बचपन में आता था ना ऐड कि अरे उसके साथ मत बैठो, ऐसे टीवी पे ऐड हो उसके साथ उसे HIV है। क्यों? क्योंकि फिर बचपन सिखाया कि HIV खाने से नहीं फैलता है, ठीक है, वेरी गुड। सर रोटा वायरस क्या होता है? रोटा वायरस बेटा बहुत जोर से, रोटा वायरस ना वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन जब बहुत जोर से जब डायरिया होता है, ठीक है, पूरी शक्तियां ले जाता है वो डायरिया, मतलब अनकंट्रोलेबल डायरिया जिसको बोलते हैं, बच्चों में होता है बेसिकली, ठीक है, बच्चों में होता है अनकंट्रोलेबल डायरिया जो होता है,
ठीक है। एक और बचपन में ऐड देखा होगा DD1 पे, बच्चों को ORS का घोल पिलाएं, है ना, दैट इज टू प्रोटेक्ट देम कि अगर डायरिया भी हो रहा है, रोटा वायरस भी है, तो उससे वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, समझा। रोटा वायरस बनाया भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने कौन सी और वैक्सीन बनाई है? अच्छा, कोविशील्ड। कोविशील्ड। बेटा ऐसे मत करो, सर वो तो कोवैक्स खाली मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर करता नहीं, कोवैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड वाले कहेंगे हम तो बेकार ही वो कर रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट वाले कहेंगे हम बेकार ही मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अच्छा है। आधार पूर्ण वाले कहेंगे अच्छा विदेश चला गया, किसी को मेरा नाम ही याद नहीं है। ठीक है, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की मैन्युफैक्चरिंग है। कोवैक्सीन इंडिया की इंडिजिनस है जो भारत बायोटेक ने प्रोड्यूस करी है। ठीक है, स्पुतनिक रसिया की है। ठीक है, फाइजर है, फिर जॉनसन एंड जॉनसन की है। फाइजर की मतलब मॉडर्ना है फाइजर की। अब एक और इंडिया की और कौन सी आ रही है? कोर्बी वैक्स। देखो देखो पीछे बताया था ना, कोर्बी वैक्स। और वो जो mRNA बेस्ड है वो कौन सी है? HGCO19, HGCO19। ओके, समझ में आ गया। ये जो मिशन इंद्रधनुष है इसके लिए कोई भी सेपरेट फंड एलोकेटेड नहीं है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसी के थ्रू इट इज कैरिड आउट, वो सेपरेट फंड्स आते हैं। फंगस के बारे में कहाँ सुना था आजकल? ब्लैक फंगस जैसा एक आया था, है ना, तो फंगस से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मोल्ड्स जो है दे आर टाइप ऑफ फंगस। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी जो है मोल्ड्स वर्ड यूज कर लेते हैं कभी कभी अपने आंसर क्वेश्चन में, तो मोल्ड्स आर टाइप ऑफ फंगस। फंगस क्या होते हैं? दे कैन बी ऑफ वेरियस कलर, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस। दीज आर, अच्छा, फंगस आर क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट्स और एनिमल्स। फंगस आर क्लोजली, मतलब अगर आपसे पूछना है कि प्लांट है कि एनिमल है तो क्या बताओगे? सर दोनों नहीं है, लेकिन प्लांट्स इसलिए नहीं क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। वेरी गुड। ये दे आर मोर रिलेटेड टू एनिमल्स। ठीक है, दे आर मोर रिलेटेड टू एनिमल्स। क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, अपना खाना बना लेते हैं लेकिन नॉट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नॉट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो? जैसे हम लोग है ना, कार्निवोर्स होते हैं या फिर हर्बीवोर्स होते हैं, हम भी तो अपना खाना कैसे होता है, कुछ खा के अपनी बॉडी में एनर्जी बना लेते हैं। ये थोड़ी हम खुद से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ लोग कर लेते होंगे, हम लोग नहीं कर पाते, है ना। कुछ लोग तो कर लेते हैं, है ना, हम लोग नहीं कर पाते। मैं तो ये कुछ तो कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भाई, हम तो खाएंगे भैया, सब खाने के लिए हो रहा है, सब पापी पेट के लिए हो रहा है। लेकिन देखिए कुछ भी हो, बात सही बोली थी, बोला हो किसी कंट्री में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। कोई बचेगा ही नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, है ना। तो ये सबसे बढ़िया फंड है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, देखी जाएगी, है ना। तो अब वो वाला फंडा चल रहा है कि बेच तो सब, देखी जाएगी, कुछ मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, है ना। वेरी गुड, चलें समझे आगे। तो फंगाई रिप्रोड्यूस भी कर लेते हैं सेक्सुअली सेक्सुअली हर तरीके से, वो बड़े ही मतलब फंगाई जो होते हैं ना, फंजाई बड़े ही मतलब डाइवर्स होते हैं, खाना बना भी लेंगे, खा भी लेंगे, हेटरोट्रॉप भी होंगे, प्लांट जैसे भी होंगे, जैसा मन करे, सिंगल सेल भी होंगे, मल्टी सेल भी होंगे। मोस्ट ऑफ द आंसर्स रिलेटेड टू फंजाई विल बी करेक्ट, most of the answer related to fungi will be correct. They are multi-celled also, single celled also. ये माइटोसिस भी कर लेते हैं, ये जो है और फॉर्म से भी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल सेल भी है एंड मल्टी सेल भी है। मोस्ट फंगाई दे आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट मतलब दे कंज्यूम द डेड मैटर। ठीक है, दे कंज्यूम द डेड मैटर। दे
also sometimes derive energy from their host. ठीक है, जो derive energy from their host, जैसे कि लाइकन्स हो गए एंड माइकोर्जिया हो गया, माइकोर्जिया हो गया. ठीक है, लाइकन्स और माइकोर्जिया. माइकोर्जिया और लाइकन्स किससे बना होता है? एल्जे और फंगाई से बना होता है. लाइकन्स के एल्जे और फंगाई से. माइकोर्जिया भी क्या होता है, पेड़ पे जो फंगस होता है उससे कंज्यूम करते हैं. ठीक है, कुछ फंजाई पैरासिटिक होते हैं, कुछ फंजाई हेल्पफुल होते हैं. जरूरी नहीं है सारे फंजाई जो है बेकार हो. ठीक है, जरूरी नहीं सारे फंजाई बेकार हो. एग्जांपल मशरूम तो लोग खाते भी हैं. मशरूम इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ फंगस. मशरूम लोग खाते हैं, है ना. तो नॉट एवरी फंगस इज पैरासिटिक. ये भी समझ में आया आपको? वेरी गुड. लेकिन सारे मशरूम खाने भी नहीं होते. ये भी समझो, कभी जंगल में चले गए, मशरूम दिख के खा लिया. मशरूम कैन बी वेरी पॉइजनस. ठीक है, मशरूम कैन बी वो. इसलिए कभी ध्यान रखें, कहीं से शॉपिंग भी कर रहे हैं ना, अच्छी जगह से मशरूम खरीदें. बहुत रिस्की हो सकता है. और स्पेशली मतलब कोई अगर नया है, नई मशरूम की दुकान निकली, बड़ा सोच समझ के खाना. दैट कैन बी डेंजरस. मशरूम जो है, क्योंकि ये फंगस है और फंगस कैन बी पैरासिटिक. इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो. और जो एलर्जिक लोग होते हैं उन्हें मशरूम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. बहुत समझ रहे हो, जिन लोगों को एंटी हिस्टामिन, जिनको फंगस इन्फेक्शन रहता है, बिल्कुल अवॉइड करें. ओके, वेरी गुड. फंजाई के बारे में इतना जानना था. पोलियो के बारे में जानते हैं. बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है? वायरल. वायरल. ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे मेन तो सिम्टम ये होता है कि एक बार पोलियो हो गया तो इट विल कॉज पैरालिसिस. ठीक है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है पोलियो का. ये बात आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, न्यूज में क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूजीज आ रहे हैं इंडिया में. इंडिया में उनको फ्री पोलियो वैक्सीन लगवाई जा रही है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पोलियो को एलिमिनेट किया था. बड़ी मुश्किल से पोलियो को एलिमिनेट किया था. अगर दोबारा शुरू हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी. बिकॉज एक बार किसी को भी पोलियो होता है, बिल्कुल लाइफ खराब कर देता है. पैरालिसिस करके लाइफ खराब. उसके बाद क्योंकि ट्रीटमेंट ही नहीं है ना, ट्रीटमेंट ही नहीं है. ठीक है, वेरी गुड. कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं पोलियो के? 3 टाइप के होते हैं. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. टाइप 2 एरेडिकेट हो चुका है. ठीक है, टाइप 3 का केस नहीं मिला है बहुत सालों से, 2012 से मिला है. टाइप 1 है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, बाकी जगहों से वो भी खत्म हो चुका है. ठीक है, टाइप 1 है. वैक्सीन होती है 2 टाइप की, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन. ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन. ओरल पोलियो छोटे बच्चों को दे रहे हैं, 5 साल से छोटे बच्चों को देते हैं. एंड जो इंजेक्टेबल है, इट इज गिवन अंडर द प्रोग्राम ऑफ UIP. और उस कौन सा है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को हम क्या नाम देंगे? इंद्रधनुष. मिशन इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? 7+4. वेरी गुड, वेरी गुड. 7+. ठीक है, इंडिया और पोलियो का क्या रिस्पॉन्स है? इंडिया ने पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिल गया था 2014 में फॉर 0 केसेस. तो क्या हम बोलेंगे कि इंडिया डज नॉट हैव एनी पोलियो केस सिंस लास्ट डिकेड? ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू. देख रहे हो ना, 2011 में आया था, 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है ना. वेरी गुड. कोई दिक्कत, कोई टेंशन? कर लेंगे पोलियो से क्वेश्चन सॉल्व. ठीक, वेरी गुड. इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई है रेयर डिजीज के लिए. एक न्यूज में क्वेश्चन आया था, एक बच्ची थी जिसको 6 करोड़ की एक वैक्सीन लगी थी. बड़ी रेयर डिजीज जो 6 करोड़ की एक वैक्सीन लगी थी, न्यूज में आया था, है ना. चलिए, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें टीबी के लिए स्कीम है, लेप्रोसी के लिए स्कीम है, एड्स के लिए स्कीम है ना. आपने सुनी होगी कि सपोर्ट करते हैं. वेरी गुड. लेकिन अगर किसी को रेयर डिजीज हो जाती है, उसके लिए कोई स्कीम नहीं है. और रेयर डिजीज होती है, उसका ट्रीटमेंट भी बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि उसका कहीं इलाज ही नहीं है. तो वो बहुत दिक्कत क्रिएट करती है लोगों को. ठीक है, तो पहले इसलिए हमें जानना है रेयर डिजीज कौन सी होती क्या है रेयर डिजीज, फिर समझेंगे वो पॉलिसी क्या होती है. रेयर डिजीज होती है 2 हेल्थ कंडीशन जो एक कंट्री की 6 से 8% पॉपुलेशन से कम से ज्यादा, उससे कम को अफेक्ट करती हो.
ठीक है, या जिसके 1 in 1000 या उससे कम केसेस आते हो, दैट विल बी कॉल्ड अ रेयर डिजीज। अब कॉमन रेयर डिजीज कौन सी है? हीमोफीलिया। जरूरी नहीं कि जिसके नाम ना सुने हो आपने वही रेयर डिजीज है, आपने हो सकता है नाम सुने हो लेकिन वो फिर भी रेयर डिजीज। कह रहे हो नाम ने सुना, रेयर कैसी? ठीक है, इसको ऐसे एलिमिनेट नहीं करना है कि हमने इस चीज का नाम सुना है तो ये रेयर डिजीज नहीं होगी। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कौन कौन सी है? हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी जो चिल्ड्रन में होती है, ऑटोइम्यून डिजीज है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, पोम्पियो डिजीज है, हिचस्पर्म डिजीज है, गॉशर डिजीज है, सिस्टिक फिब्रोसिस है, हेमेंजियोमास है और अदर डिजीज है। नेट खोल के ढूंढना मत कौन सी डिजीज का क्या दिक्कत होती है, ठीक है? इतना रेयर डिजीज क्या होता है वही पता है, वही बहुत है हमारे लिए। ओके, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज। इसमें क्या है कि बहुत खर्चा होता है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि रेयर डिजीजेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। पहले क्या होगा? डिसऑर्डर्स विच आर ट्रीटेबल वन टाइम, कुछ ऐसा होता है एक ही बार आपने ऑपरेशन कराया ठीक हो जाएंगे। दूसरा है जो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहते हैं, एंड सम डिजीजेस विच नीड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बट चैलेंजेस आर अवेलेबल। ओके, 3 ग्रुप में। एक तो है एक बार ऑपरेशन कराया कोई दिक्कत नहीं है, सब सॉर्ट हो गया। दूसरा है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता ही रहेगा। थर्ड है ट्रीटमेंट एक बार हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज पोज करता है। तो ये 3 में डिवाइड करें। अब पॉलिसी प्रोवाइड क्या करेगी? पॉलिसी विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू 20 लाख, फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 20 लाख अंडर राष्ट्रीय आरोग्य निधि। किस डिजीज के लिए? फॉर विच डिजीज? जिनका वन टाइम ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फॉर दोज डिजीजेस जिनका वन टाइम ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं? बीपीएल फैमिलीज, ठीक है, बीपीएल फैमिलीज। लेकिन 40% ऑफ पॉपुलेशन को भी कराए जिसमें जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के, लेकिन वो कहाँ है? सिर्फ टर्शरी हॉस्पिटल में। तो टर्शरी हॉस्पिटल में इंडिया में इनका ट्रीटमेंट हो सकता है फॉर दोज हु आर एलिजिबल फॉर राष्ट्रीय जन आरोग्य योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो स्कीम है ग्रुप 3 डिजीजेस के लिए कोई फाइनेंशियल ट्रीटमेंट नहीं बताती है, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रीटमेंट नहीं बताती। और इसके लिए क्या करते हैं? गवर्नमेंट क्राउड फंडिंग करवाती है। गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है क्राउड फंडिंग, ठीक है, जहां पर लोग डोनेट करते हैं मनी। समझ गए क्यों इसको हम समझ रहे हैं? बिकॉज अ गर्ल शी रिसीव्ड अ 6 करोड़ वर्थ 6 करोड़ इंजेक्शन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जहां पर इन सब का डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट होगा। ओके, समझ में आ गया? तो वो 6 करोड़ की वैक्सीन गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की थी? ना ना, गवर्नमेंट नहीं, क्राउड फंडिंग। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती तो इतना न्यूज थोड़ी, क्राउड फंडिंग थी। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग होता है, देख अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपील करी थी बेसिकली कि आप डोनेट करें, लोगों ने डोनेट किया था। ठीक है, मोदी जी ने बहुत किया, उन्होंने बोला कि इसका हम टैक्स वेव कर देते हैं। क्राउड फंडिंग हुई है, जो इंपोर्ट करने के लिए जो भी टैक्स लगेगा हम वेव कर देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने मतलब अपना सारा फॉरवर्ड कर दिया। दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। लोग सपोर्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, मिल बांट के ही वेलफेयर स्टेट में काम चलता है, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या करेंगे? उनको ग्रांट मिलेगी 5 करोड़ रुपीस की, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करें इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर और ट्रीटमेंट के लिए। एंड पॉलिसी स्टेट्स द गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट मोर सच R&D सेंटर फॉर द ग्रुप 3 डिजीज जिनका ट्रीटमेंट वन टाइम है लेकिन दे पोज अ चैलेंज, ठीक है, समझ गए?
बेसिक समझ गया कि रेयर डिजीज क्या होती है, क्वेश्चन यही आएगा होती क्या है रेयर डिजीज। ओके, मेरे को जीका वायरस के बारे में सुना है, ठीक है। जीका वायरस है कि बैक्टीरिया, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जीका नाम में जीका वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। केरला में आइडेंटिफाई हुए हैं केसेस। ये क्या है, मॉस्किटो बॉर्न है, ठीक है, फ्लैवी वायरस है, मॉस्किटो बॉर्न फ्लैवी वायरस है। पहली बार उगांडा मिला था मंकीज में, देन 1952 में तंजानिया और उगांडा मिला इन ह्यूमंस। इट इज कॉज्ड बाय एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो, एडिस इजिप्टी सुना है कहीं और, कहां सुना है, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर, यानी कि सेम फैमिली का है। फैमिली देख लीजिए अब, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका, दे बिलोंग टू सेम फैमिली। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका। कोविड क्या सेम फैमिली से है? नहीं, कोविड मॉस्किटो बॉर्न नहीं है ना, कोविड इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न। तो ये था जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि ये वैसे भी ट्रांसफ्यूज हो सकता है। माइल्ड सिम्टम्स होते हैं फीवर, रैश, मसल जॉइंट पेन, मलाइस और हेडेक। इंक्यूबेशन होता है 3 to 14 डेज, सिम्टम्स 2 to 7 डेज तक लास्ट करते हैं। मोस्ट पीपल विद जीका डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम्स। कोई वैक्सीन और ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, कोई वैक्सीन और ट्रीटमेंट नहीं है। कोई दिक्कत? चले आगे। वेरी गुड। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होता है? व्हाट इज गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च? क्वेश्चन ये नहीं आएगा क्या हुआ, बस ये पता होना चाहिए व्हाट इज गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। बोलिए गाइस, नहीं पता? सबको ये डाउट है कि जो कोविड वायरस है ना, वुहान की लैब से लीक हुआ, ये तो समझते हैं। वो जो काम कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। मतलब रिसर्च में व्हाट दे डू, दे ग्रो जनरेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that cause mutations in, जिसकी वजह से that virus spreads fast, बहुत हाईली ट्रांसमिसिबल होता है एंड बहुत सीवियर होता है, ठीक है। ये होता है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। जो किस लिए करते हैं? जनरली फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ डिजीजेस और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड थेरेप्यूटिक्स, ठीक है, इसलिए होता है। क्या होता है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च? वैक्सीन बनाने के लिए या फिर ट्रांसमिटेबिलिटी पता करने के लिए या थेरेपी बनाने के लिए माइक्रो जनरेशंस की, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी जनरेशंस पर को ग्रो करते हैं अंडर सर्टेन कंट्रोल कंडीशंस वेयर म्यूटेशंस आर identified or caused in those microorganisms so that it transmits fast or it becomes more severe, so that more better research can be done on that microorganisms. That is called as gain of function research, ठीक है। ये हुआ है चाइना में, तो उसके नाम हमें समझना है कि होता क्या है, ठीक है। वेरी गुड। निपा वायरस क्या होता है? ठीक है, ये समझना है। निपा वायरस के जो एंटीबॉडीज है, दे आर फाउंड इन बैट इन महाराष्ट्र। निपा वायरस के एंटीबॉडीज आर फाउंड इन बैट इन महाराष्ट्र। थोड़े टाइम पहले, हर साल थोड़े थोड़े केसेस केरला में बहुत आते हैं एंड इट इज अ डेडली वायरस, ठीक है। ये क्या है? इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड इन मलेशिया, ठीक है, इन कामपुंग सोंगई निपा विलेज, ठीक है, विलेज के नाम पर पड़ा है निपा वायरस 1998 इन मलेशिया। इंडिया में नया नहीं है, 2001 में देयर वर केसेस इन इंडिया, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल। कहां से होता है? फ्रूट बैट से होता है, बट इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट पिग्स और एनी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इट कैन इन्फेक्ट पिग टू और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वायरस कहां होता है? बैट, यूरिन, फीकस, सलाइवा, बर्थिंग फ्लूइड्स। ह्यूमंस को ट्रांसमिट कर सकते हैं व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज और ड्रिंकिंग लॉ पाम सैप कवर्ड, यानी कि जब आप पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर कोई पाम सैप को पीने की कोशिश करते हैं, तब निपा हो सकता है, ठीक है, तब निपा हो सकता है। ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है विद द निपा इन्फेक्टेड पीपल। सिम्टम्स वही फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं,
इवन एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हो सकते हैं। कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, कोई वैक्सीन नहीं है एंड बहुत डेंजरस है। ओके, सीटी स्कैन क्या होता है पता है आपको, है ना, सुना होगा कोविड के टाइम से। इसको, उसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। बहुत सारे एक्सरे एक साथ जब हो जाएं उसको सीटी स्कैन बना देते हैं कंप्यूटर के थ्रू। बहुत सारे एक्सरेज होते हैं एक टाइम पर, 600 के करीब एक्सरेज होते हैं, तो उसको एक साथ जब बहुत छोटे 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 होते हैं तो वो उसको सीटी स्कैन की मशीन में करा जाता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ने बोला कि उनके वहां से अब इबोला वायरस खत्म हो गया। इबोला वायरस समझ लेते क्या है, फीवर है, वायरस है, फेटल इलनेस होती है, डेडली है, बहुत सारी स्पीशीज से डिपेंड करता है, लेकिन ये एडिस एडेप्टिव नहीं है, ठीक है, ये एडिस एडेप्टिव से नहीं होता है। इट इज ट्रांसमिटेड टू वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, एंड ऑल्सो इन ह्यूमंस। इट बिलोंग्स टू दी टेरोपोडाइए, जो भी फैमिली है, देख लेना जैसे प्रोनाउंस होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है। हेल्थ इंपैक्ट क्या है कि 50% फर्टिलिटी है एंड केस फर्टिलिटी रेट्स हैव वेरीड फ्रॉम 25 to 90% आल्सो। बहुत डेंजरस है। सपोर्टिव केयर है तो सर्वाइवल के रेट बढ़ जाते हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ये बोला के बारे में। कहाँ है? अफ्रीका में है जनरली, इंडिया में थैंकफुली नहीं है, ठीक, कुछ भरोसा नहीं है, हो भी नहीं पता लगाओ, लेकिन थैंकफुली नहीं है। ओके, क्योंकि हमारे लिए कोविड नहीं बहुत मुसीबत क्रिएट करी हुई है। कोई दिक्कत वाली बातचीत तो नहीं है? इतना करें, आगे चलें, हो गया आज के लिए, बहुत वायरस पढ़ लिए। हाँ, आज के लिए हो गया। आज देखे कितना बचा है साइंस में, बायोलॉजी कितना बचा है, मंकी। एक काम करते, एवियन इन्फ्लुएंजा, अब 2 और बचे हैं, फिर हम थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, है ना। मंकी बी वायरस, चाइना ने पहला अपना ह्यूमन केस इन्फेक्शन का आइडेंटिफाई कर लिया है ऑफ मंकी बी वायरस। नया वायरस नहीं है, 1932 में आइडेंटिफाई हुआ था, बट टिल नाउ ओनली 50 पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड, अमंगस्ट व्हिच 21 डाइड। ये मकाक से होता है, ठीक है, अल्फा हर्पिस वायरस है, ठीक है, हर्पिस वाली फैमिली से अल्फा हर्पिस वायरस है। वायरस आइडेंटिफाइड ओल्ड वर्ल्ड मंकी हर्पिस वायरस दैट डिस्प्लेस सीवियर पैथोलॉजी। मतलब बी वायरस जो है ओनली आइडेंटिफाइड जो है फॉर्म है इसका। नो वैक्सीन आर देयर। ट्रांसमिशन कैसे होता है? बॉडी सिक्रीशंस ऑफ मंकीज से होता है, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ओनली 1 केस है आज तक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का। फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, लास्ट में लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। कोई वैक्सीन नहीं है। एंटीवायरल अगर मेडिकेशन ले तो उससे रिस्क टू लाइफ कम हो सकता है, ठीक है। मतलब केस कहाँ मिला है पता होना चाहिए, चाइना में। ओके, क्वेश्चन ये है कि इट इज द फर्स्ट एवर केस नहीं। कैसे आते हैं स्टेटमेंट, इट इज द फर्स्ट एवर केस ऑफ मंकी बी वायरस, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी भी जितने भी चीजें पढ़ी कहीं भी फर्स्ट एवर केस अभी नहीं मिला, पहले से चलते आ रहे, याद रखिए। वेरी गुड। एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू क्या होता है? वायरस होता है कि बैक्टीरियल होता है? वायरस होता है, ठीक है। कौन सा वायरस होता है? H1N1, H5N1, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है। इसमें से बर्ड फ्लू कौन सा है? ऑप्शन देते हैं H5N1, H6N1, H1N1। हाँ, कितना मुश्किल H5N1। H5N1, वेरी गुड। बोर्ड पे लिखा है ना, मतलब स्लाइड में, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरी गुड। याद कैसे करेंगे? H1N1 होता है स्वाइन फ्लू, ये 2 याद करो, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। H1N1 होता है स्वाइन फ्लू, H5N1 होता है बर्ड फ्लू, ठीक है। समझो याद करने का तरीका, ठीक है। इसका और कोई लिंक नहीं है, बस याद करने का तरीका बता रहे हैं। अगर कोई शौकीन होता है नॉन वेज का, एक टाइम पे ज्यादा पिग खा सकता है, मतलब पोक कंज्यूम कर सकता है, या ज्यादा बर्ड्स कंज्यूम कर सकता है? तो बहुत शौकीन होता है,
चांसेस ये है ना ज्यादा बर्ड्स कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो जिसमें 5 है वो बर्ड वाला है, H5N1 बर्ड वाला, H1N1 स्वाइन वाला, ठीक है। एक टाइम कितना भी बड़ा शौकीन हो, एक पूरा पिग से ज्यादा नहीं कोई कंज्यूम कर सकता है। 1-1 वाला स्वाइन फ्लू है, ठीक है, 1-1 वाला स्वाइन फ्लू है, ठीक है। याद करने का तरीका, H5N1 बर्ड फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। वही सिम्टम होता है कि भैया फ्लू जैसा होता है, क्योंकि बर्ड फ्लू है, फ्लू तो बर्ड वहीं से निकल के आया है ना। इतना ज्यादा डिटेल जाननी नहीं कि ये कितना होता है, बर्ड को होता है, ये हो ये हो, टेक्निकल वर्ड्स में थोड़ी जाना है सर। छोड़ दो। मैं बंदे बोला 2 ही चीज याद करनी, H5N1 क्या होता है, H1N1 क्या होता है, कितने टाइप के इन्फ्लुएंजा होते हैं, ये सब नहीं ज्ञान है, याद ही नहीं रहना। इतनी डिटेल कोविड के बारे में अगर ले सकते हो ले, क्योंकि इट इज इन न्यूज, कोविड के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में। अदरवाइज बाकी और के बारे में अगर आप लोगे तो जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो क्या करेंगे, तो आप कर लोगे, वायरोलॉजिस्ट क्या करेंगे, है ना। ठीक है, अब बताइए कोई डाउट, कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई मेंशन नहीं। चले कल करें, अब कल मतलब मंडे को करेंगे, रिवाइज करते रहिए। करंट हमारा बिल्कुल स्पीड से चल रहा है, पूरी कोशिश रहेगी 15 सितंबर तक खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो 20 तक हो जाएगा, नहीं होगा तो 22 तक हो जाएगा, 25 तक हो जाएगा, वहां पर बहुत टाइम है, जितना लेट करेंगे उतना याद रहेगा, है ना। हाँ जी बताइए काजल, डाउट बेटा। सर वो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक आप बता सकते हैं क्या, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो एफडीआई, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सारी जितनी फॉरेन से आ रही है उसको सबको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोल दिया है। अगर वो 10 साल से ज्यादा होती है तो उसको एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट उसकी कंडीशन ये होती है 10 साल से ज्यादा के लिए हो, या फिर एटलीस्ट 10% से ज्यादा टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी में जो है फॉरेन के थ्रू एक डायरेक्ट सेलर हो तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर छोटे छोटे टाइम के लिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए हो रही है तो उसको एफआईआई बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हॉट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये सब चीजें जो है अगर किसी पोर्टफोलियो के अंडर हो रही है, पोर्टफोलियो मतलब फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, इन पोर्टफोलियो के अंदर हो रही है तो उनको पोर्टफोलियोज में डिवाइड किया हुआ है। फॉरेन से होता है तो उनको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वेरी गुड, कोई और डाउट? विल कंटिन्यू ऑन मंडे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।